students, once again all of you are welcome to my YouTube channel Math Success Point. For class 9 we are discussing the second chapter, that is polynomial. In my previous video I discuss all types of algebraic expression, polynomials, monomial, binomial, trinomial, linear polynomial, quadratic polynomial or cubic polynomial, and question number 1 also. Today we shall start from question number 2. Let me take, because in question number 2 you see your NCERT book exercise 2.1, okay, and here it is given. Actually I told you all such type of examples along with the property, along with the definition, write the coefficient, write the coefficients of x square in the polynomial in the following polynomials. All are polynomials. Okay, let me take the first part of it. Very simple, but I told you must have to see the repeatedly the definition of each and every kind of polynomial, that is x. It is given x square is here only. Here it is given, you find out the coefficient of x square in this polynomial, and you see I will tell you each and everything so that you can find out the solution of the questions yourself also. You can practice properly, because you see highest degree is 2. मैंने पहले ही बताया था कांस्टेंट की जो डिग्री है वो क्या होती है 0, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2x to the power 0, x to the power 0 that is 1, x to the power 1 यहाँ पे हो गया और x to the power 2 यहाँ पे हो गया. Highest power is 2. The degrees of this is a quadratic polynomial because the degree is 2, और इसका हमें केवल कोफिशिएंट निकालना है. तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर के साथ में, दैट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ इट. तो अब बता दीजिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट? दैट इज 1, बिकॉज 1 दैट इज अंडरस्टूड. ओके, let me take the second part of it, of question number 2, second part. What will be the second part? 2 minus x square and plus x to the power 3. You see highest power is 3, that is why अब यहां पर इसको एक क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा. That is a cubic polynomial, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है, और यहां पर कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x square is, you see x square के अलावा जो भी इसकी वैल्यू होगी that is coefficient of it. मेरे ख्याल से -1 है, -1 is the coefficient of it. ओके, इसलिए आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. दैट इज वेरी सिंपल. और लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. लेट मी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ इट. थर्ड पार्ट थोड़ा सा ऊपर ही लूंगा मैं, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो. थर्ड पार्ट इज पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब इसमें देखिए दैट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है 2. ओके, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी इसके साथ में वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन के साथ में, याद रखना, दैट विल बी द कोफिशिएंट. तो यहां पे कोफिशिएंट क्या है इसका? पाई बाई 2. इट्स कोफिशिएंट इज पाई बाई 2. ओके, let me take one more thing, fourth part of it. Fourth part is also there. Fourth part is, let me write it here. Fourth part, root 2x plus 1. Root 2 is there. Root is with 2, not with x. तो इसलिए इसको याद रखना. यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जरा बता दो. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इज नॉट देयर. तो क्या करेंगे? कोफिशिएंट विल नॉट बी देयर. एक्स स्क्वायर इज नॉट there. So
there is no coefficient. Okay, x square is not there, so its coefficient we can't get the coefficient of it. Okay, that is why you see I have told you the coefficient of it. Okay, and because you see √2x, और मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, +0 इंटू एक्स स्क्वायर. चलिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूं, +0x स्क्वायर इसमें, तो इसको भी फिर मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने इसको. इसमें क्या कर दिया, √2x + 1 + 0 इंटू एक्स स्क्वायर. तो कोफिशिएंट, अब मैं कोफिशिएंट इसका लिख देता हूं. चलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इसका कोफिशिएंट इज 0. अब आप 0 लिख लीजिए. एक्चुअली ये टर्म यहां पे नहीं है तो मैंने इस टर्म को ऐड कर दिया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मींस 0. ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 0. ठीक है, कोफिशिएंट इज 0. चलिए अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. थर्ड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आल्सो देयर. थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी किताब में देखिए. क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल. वन क्या, आप तो जितनी चाहे एग्जांपल दे सकते हैं. वन एग्जांपल, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. Of each of a binomial, of degree. देखिए डिग्री देखो, डिग्री कितनी है भाई, डिग्री 35 एंड डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. इसने बताया है क्या करना है हमको, यू मस्ट हैव टू गिव ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. बहुत दुनिया भर के एग्जांपल आप दे सकते हैं. ठीक है, इसमें केवल यही दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आप जितने चाहे एग्जांपल दे सकते हैं. बाइनोमियल लिखेंगे यहां पर सबसे पहले, बाइनोमियल. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल. एक एग्जांपल देने, आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं. चलिए बाइनोमियल दिखते हैं. बाइनोमियल क्या होगा भाई, बाइनोमियल ऑफ वन एग्जांपल ऑफ ईच बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. चलिए जो चाहे लीजिए. बाइनोमियल कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए बाइनोमियल के अंदर. तो 2 टर्म में आप जो चाहे ले सकते हैं. 2 + x⁵ 35, दैट इज ए बाइनोमियल. और आप, मैंने बताया ना, जो एग्जांपल आप लेना चाहे ले सकते हैं. एंड एक स्टैंडर्ड ले लो, a x⁵35 और प्लस b. a x⁵35 प्लस b बाइनोमियल है. एक टर्म ये होगी, एक ये होगी, x की पावर होगी 35. These are the examples of it. सेकेंड बताइए मोनोमियल ऑफ डिग्री. डिग्री क्या होनी चाहिए, 100 ऑफ डिग्री 100 मोनोमियल. अब मोनोमियल में तो आप कुछ भी ले सकते हो ना. मोनोमियल में तो 2, 3, 4, 5 जो भी लेना चाहे ले सकते हैं. और आपका इसमें देखो, उसकी भी पावर x ये लिख सकते हैं. सपोज 3x⁵ 100, दैट इज ए मोनोमियल. एक ही टर्म होनी चाहिए. एंड और क्या लिख सकते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूं, ax⁵100. ठीक है, हमें मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100. तो ये मोनोमियल आ गई हमारे पास. एक स्थान पे आप जो चाहे ले लीजिए. मैंने बोला है, ये भी बताया 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं. तो ये मोनोमियल आ गई एक ही टर्म में. बाइनोमियल आ गई, इसमें 2 टर्म है. तो इसलिए इन चीजों का आप लोग ध्यान रखें.
यू मस्ट हैव टू थिंक इन। और कोई जरूरी नहीं है आप एक्स ही वेरिएबल है, एक्स वाई जेड वट एवर इट मे बी, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल, अब एक्स के स्थान पे वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, वाई टू द पावर 100 जेड टू द पावर 100, दैट डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट एवर यू वांट टू टेक। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, each and every question, the solution of each and every question I am telling you, I am discussing so that you will be in a better position. Question number 1. Okay, let me take the question number 1 and see how you can find out its solution. Question number 4. Question number 4, here it is given, write the degree of each of the following polynomial. Write the degree. Degree मैंने पहले ही बता दिया, degree of each of the following. Highest power of the polynomial. Each of the following polynomial. Each of the following polynomial. चलिए फर्स्ट मैं ले लेता हूं, इसकी अब डिग्री बताएंगे, डिग्री कितनी होगी। फर्स्ट पोलिनोमियल 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 7x। मैंने पहले बताया था यू मस्ट हैव टू सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब यहां पे देखो सॉल्यूशन में देखिए द सॉल्यूशन, द हाईएस्ट पावर, let me write first power, highest power of x is what? 3। हाईएस्ट पावर देखिए 5x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर है, यहां पे x है, इज 3। सो इट्स डिग्री इज 3। इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी। ओके चलिए अब इसके बाद एक और भी इसमें दी हुई है, इसका ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया था, अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूं इसका। यू सी द सेकंड पार्ट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए पॉलिनोमियल y में है, यहाँ पे वेरिएबल y है, याद रखना वेरिएबल इज y, और इसकी डिग्री कितनी होगी भाई, यहाँ पे 4x टू द पावर 0, सॉरी y टू द पावर 0, 4y बिकॉज पॉलिनोमियल दैट इज गिवन इन y की फॉर्म में है, तो इसकी 4y टू द पावर 0, y टू द पावर 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी हुई भाई बताइए, लिख रहा हूं पूरी, द हाईएस्ट पावर ऑफ y इज 2। सो डिग्री कितनी हो गई भाई, डिग्री बताइए, डिग्री इज 2। इसकी डिग्री 2 हो गई बताइए, ठीक है समझ में आ गया ना। आप समझते रहिए, इसका थर्ड पार्ट लेता हूं मैं, थर्ड पार्ट में डिग्री बताएंगे आप। थर्ड पार्ट ऊपर ले लेता हूं, थर्ड पार्ट यहीं पर ले लेता हूं, थर्ड पार्ट you see question number 4 third part, that is 5t और -√7। अब देखिए वेरिएबल मैंने बताया ना, वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो गया, यहाँ पे t आ गया। अब यहाँ पे t की पावर देखो 1 है ना, द हाईएस्ट पावर इज, व्हाट इज दैट हाईएस्ट पावर 1, एंड इट्स डिग्री कितनी हो गई भाई, डिग्री हो गई 1। देखिए दैट इज वेरी सिंपल, वेरिएबल t हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ t, वेरिएबल इज t, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी इसकी 1 हो गई। चलिए इसका लास्ट पार्ट में ले लेता हूं, दैट इज 3। पॉलिनोमियल इज गिवन 3 और 3 को मैंने बताया था, 3 को आप लिख सकते हैं 3x टू द पावर 0। ओके दैट इज वाई x टू द पावर 0, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज, अब y भी ले सकते थे, यहां पर जरूरी नहीं है x ही लें, y t भी आया है, यहां पर t ले सकते हैं, जो लेना चाहे ले सकते हैं। कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर कितनी है 0, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 0, इसकी डिग्री 0 हो गई। ओके दैट इज वेरी सिंपल, मैंने पहले ही बता दिया, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आप सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और डिग्री, ये थोड़ी सी तो डेफिनेशन है, देखो फिर आपका मजा आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कोई हो ही नहीं सकता पॉलिनोमियल में जो आपकी समझ में ना आए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसकी डिग्री हमारी कितनी हो गई भाई, 3 है तो 3 की हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 5 रहेंगे, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 लेट मी टेक, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आई एम गोइंग टू टेक
फ्रॉम योर क्लासिफाई द फॉलोइंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तभी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं यदि आपके डेफिनेशन याद है। क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कौन कौन सी पॉलिनोमियल? एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। दूसरा क्या होना चाहिए? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक देखें कौन कौन सी है, क्वाड्रेटिक, और फिर क्या है भाई? एंड क्यूबिक। क्यूबिक। अब इसको आइडेंटिफाई करना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स देखिए सॉल्यूशन देंगे इसका, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं यहां पे बताऊंगा, मैं सबसे पहले लूंगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कौन कौन सा आता है यहां पे? सबसे पहले फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल देखिए भाई कौन कौन सा है। फर्स्ट पार्ट में पहला, फर्स्ट पार्ट हटा देता हूं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाए। कुछ क्वेश्चन भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट की फॉर्म में दिया है। देखिए एक तो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है मैं लिख देता हूं यहां पे, 1 प्लस एक्स। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1। इट्स डिग्री इज 1। देख लीजिए एक्स की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर। उसके बाद एक और लेंगे हम लोग, कौन सा पार्ट है भाई? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट, एक फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 3t, इसकी भी पावर 1 है, ठीक है ना? तो यहां पे और मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। बोथ पॉलिनोमियल्स, बोथ पॉलिनोमियल्स, बोथ पॉलिनोमियल्स having highest power 1, ठीक है? तो ये क्या हो गई? सो दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल, दीज आर लीनियर पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दोनों की फोर्थ और फिफ्थ में दोनों की पावर, यहां पे वेरिएबल एक्स और यहां पे टी है, लिंक्ड पावर तो सेम ही है ना, 1। दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये लीनियर पॉलिनोमियल होते, यहां पे क्या लेना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी लेना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए कौन कौन से आएंगे, मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको विजिबल हो, ये चीजें विजिबल होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में होनी चाहिए पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, वही लेंगे हम इसमें। देखिए भाई हाईएस्ट पावर वाले कौन कौन से? एक तो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? और उसके बाद थर्ड पार्ट भी है भाई, थर्ड पार्ट देख लो। थर्ड पार्ट में है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए हाईएस्ट पावर यहां पर भी 2 है। और देखो आप भी देख लीजिए सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में क्या है? दिस इज द सिक्स्थ पार्ट, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यहां पे पॉलिनोमियल किस में है? एक्स वेरिएबल में। यहां पे पॉलिनोमियल किस में है? वाई में। और यहां पे पॉलिनोमियल किस में है? आर स्क्वायर में, आर की फॉर्म में। लेकिन डिग्री हाईएस्ट पावर सबकी 2 है, ठीक है? डिग्री इज 2 ऑफ ईच एंड एवरी ऑफ ईच पॉलिनोमियल। तो एक साथ लिख लेता हूं, ठीक है? द डिग्री ऑफ ईच पॉलिनोमियल इज 2। चूंकि सबकी एक साथ लिख दी भाई 2, सो दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। देखिए मैंने फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ, डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये सभी कितनी क्या हो गई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या लेंगे हम लोग? क्यूबिक पॉलिनोमियल का नंबर आता है नेक्स्ट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए मैं थर्ड लिख देता हूं यहां पर, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सी द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा? अब हम पार्ट लेते हैं जिसकी पावर 3 होगी, ठीक है? एक तो सेकंड पार्ट है, सी द सेकंड पार्ट, x माइनस एक्स टू द पावर 3, पावर 3 हो गई।
और देखते हैं कोई है क्या? यस, एक पार्ट और है इसमें, दैट इज सेवंथ पार्ट। उसमें देखो क्या है पॉलिनोमियल, 7x टू द पावर 3, 7x टू द पावर 3। ओके, तो इसमें और नहीं लगता मुझे कोई भी पॉलिनोमियल है, सेकंड है और सेवंथ है। तो इसमें क्या है, बोथ हैविंग द हाईएस्ट पावर 3। ठीक है, सो दीज आर व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं इसको भी हटा देता हूं सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू। देखिए मैंने वहीं पर लिखे हुए मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां देखिए, इसकी भी डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3। ठीक है, बोथ पॉलिनोमियल हैविंग व्हाट? हाईएस्ट पावर 3। हाईएस्ट पावर 3 है इनकी, भाई देख लीजिए। ठीक है, और मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड और सेवंथ क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने रीजन बताया, हर क्वेश्चन में रीजन बताया क्यों ऐसा होता है। और बार बार बता रहा हूं, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी डन, स्पेशली इन मैथमेटिक्स। यू कैन मेक इट इजी बाय डूइंग द प्रैक्टिस टाइम एंड अगेन। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा, कुछ और प्रॉपर्टी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, सो दैट द क्वेश्चंस, द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी इजी फॉर यू। आप इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बट लेकिन भैया प्रैक्टिस तो आपको लगातार करनी पड़ेगी, लगातार मेरे टच में रहना पड़ेगा। अब मेरे टच में रहिए, देखिए सेशन 2025 और 26 में, अब क्लास 9 में है ना, भी 10th में आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि मैथमेटिक्स में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन लगातार आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। जो भी मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, चाहे कोई भी चैप्टर हो, एक चैप्टर आप ले लीजिए, उस चैप्टर को सबसे पहले सी का ऑपरेशन कर दीजिए, देखिए फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा लगता है कि जैसे आप घर में जब देखोगे ना स्मार्ट टीवी में इसको, यूट्यूब पर, तो ऐसा लगेगा कि हमारे घर में ही टीचर पढ़ा रहा है। लेकिन क्या है, एक चीज और याद रखनी है कि वीडियो देखने के बाद आप उसको लाइक करना ना भूलें। लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो आएंगी आपके पास पहुंचती रहेंगी तुरंत। ठीक है, और आपकी जो एजुकेशन है, आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।